السلام علیکم ایوری میرا نام ہے عثمان احمد. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں لوپس کے اوپر. تو لوپس کیا ہیں، کس طریقے سے پروگرامنگ میں ان کا کانسیپٹ ہے، کس وجہ سے ہم ان کو یوز کرتے ہیں، ہم لوپ کی مدد سے کیا کیا کر سکتے ہیں، لوپ کیا ہوگا، کیا سنٹیکس ہوگا، جو جو کنفیوژن ہے ساری کی ساری اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. تو زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، لوپس کی طرف بڑھتے ہیں. آپ آلریڈی دیکھ سکتے ہیں رات کے 3 بج رہے ہیں. تو مجھے فٹافٹ ویڈیو بھی کور کرنی ہے اور کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو نالج شیئر کر سکوں. تو اچھا، میں نے ابھی تک کیا کیا بھائی. میں نے سب سے پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا اب تک ہم جی ایس آئی ٹی ورک اسپیس میں کام کر رہے تھے. اس کے اندر ایک یوٹیوب ورک کا فولڈر بنایا ہوا تھا اور ہم ساری ایپس یہیں پہ بنا رہے تھے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک فائل بنائی ہے، ایک فولڈر بنایا ہے ٹی ایس لوپس ایپس کے نام سے. بیچ میں آپ نوٹ کریں کہ ڈیش ڈیش یوز کیا ہوا ہے اس تاکہ ہم چیزوں کو کر سکیں. ایک ٹی ایس کانفگ کی فائل ہے، ایک ایس آر سی کا فولڈر ہے، اور اس کے اندر ہم نے ایک فار ڈیش لوپ ڈاٹ ٹی ایس کے نام سے فائل بنائی ہے. اس فولڈر کو میں نے وی ایس کوڈ میں اوپن کر لیا، اور جب یہ فولڈر ہمارے پاس وی ایس کوڈ میں اوپن ہو گیا تو کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ایک فائل آ گئی. اچھا بھئی، یہ ٹی ایس کی فائل کیسے بنے گی، سورس کیسے بنے گا، یہ سارا کچھ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کری ہوئی ہے، اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، میں نے اس کو سائڈ میں کر دیا تاکہ ہمارے پاس جو ٹرمینل ہے ہمارا گٹ بیش وہ پراپرلی آ سکے. اب ہم کیا کرتے ہیں بھائی، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بھائی لوپس کیا ہے. اچھا تو بھائی لوپس اگر آپ ٹائپ اسکرپٹ میں آگے دیکھیں، ہم W3 کو یوز کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. تو یہاں پہ آپ کو لوپس کی کوئی خاص چیز ملے گی نہیں. دیٹس مین کہ لوپ جو ہیں وہ کوئی اسپیسیفک سنٹیکس لے کے ٹائپ اسکرپٹ میں نہیں آئے. جیسے ہم نے ایرے اور ٹپل پڑھے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی ان کے لیے ایک نیا سنٹیکس آیا تھا. اور جاوا اسکرپٹ کے اندر کیا ہوا بھائی، جاوا اسکرپٹ میں جو اگر ہم ٹائپ اسکرپٹ میں جائیں تو جو لوپس کا کانسیپٹ ہے وہ جاوا اسکرپٹ سے آ رہا ہے. تو آپ جاوا اسکرپٹ میں جائیں گے تو بھائی آپ کو بہت سارے قسم کے لوپ مل جائیں گے، جس میں فور کا لوپ ہے، فور ان کا لوپ ہے، فور آف کا لوپ ہے، وائل کا لوپ ہے، اور ساتھ میں ایک ڈو وائل کا لوپ بھی ہوتا ہے جو کہ وائل کا ایک الگ سمجھے چیز ہے. اچھا بھائی، جاوا اسکرپٹ فور لوپ. اچھا بھائی، لوپ ہوتا ہے کیا ہے. اچھا، لوپ کا مطلب آپ سمجھ لیں چکر. صحیح ہے، چکر لڑکی والا نہیں یا لڑکے والا نہیں، یا پیسے کا چکر نہیں، وہ والا چکر نہیں. چکر سے مراد ہے کوئی بھی چیز. جیسے کہ بھائی میں نے آپ کو، جیسے ہم لوگ اپنی نارمل لائف میں ایک چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بھائی گھر سے آفس، آفس سے گھر. صحیح. اور یہ لوپ ہمارا کب ٹوٹتا ہے بھائی، نارملی جب ہماری چھٹی ہوتی ہے آفس کی، تو تب ہمارا یہ کیا کہتے ہیں لوپ ٹوٹتا ہے. ایک بریک ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی ہماری زندگی ایک لوپ میں آئی ہوئی ہے، ایک سیم چیز بار بار چلتی رہتی ہے ہماری لوپ کے اندر آئی ہوئی ہے. ایک روٹین لائف جسے ہم بولتے ہیں، تو ہماری زندگی ایک چکر میں گھوم رہی ہے. ہماری دنیا، اگر آپ ارتھ کو دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا بھائی دنیا گھوم رہی ہے، چاند گھوم رہا ہے، سب کچھ جو آپس میں ایک دوسرے کے گھوم رہے ہیں. تو وہ بھی ایک طریقے سے لوپ میں ہے. تو لوپ کا مطلب کیا ہے بھائی، ایک کوڈ کو بار بار چلانا، چکر دینا. صحیح ہے. اب بھائی آتے ہیں ہم واپسی پروگرامنگ کی طرف، بہت ادھر ادھر نکل گئے. آپ یہاں پہ دیکھیں بھائی، لوپ کی ڈیفینیشن یہیں لکھی ہوئی ہے چھوٹی سی. لوپ کین ایگزیکیوٹ اے بلاک آف کوڈ اے نمبر آف ٹائم. مطلب کیا ہے بھائی، لوپس کی مدد سے آپ کا کوئی بھی کوڈ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے لکھا کنسول ڈاٹ لاگ مائی نیم، اور کچھ بھی لکھ دیا، عرفان احمد، یا اپنا نام لکھ دیا، اور اب بلاک آف کوڈ. صحیح ہے، آپ اس کو بلاک آف کوڈ بولتے ہیں. صحیح ہے، ایک کوڈ کا بلاک لکھ دیا، اور نمبر آف ٹائم مطلب جتنی بار آپ چاہیں اتنی بار چلا سکتے ہیں. لوپس جاوا اسکرپٹ میں جو ہے بھائی آر ہینڈی اف یو وانٹ ٹو رن دا سیم کوڈ اوور اینڈ اوور اگین. مطلب آپ کو کوئی ایک کوڈ ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں بار بار چلتا رہے. اب آپ بولیں گے سر ایسا کیوں ہے کہ کیوں بار بار چلتا رہے. تو اس کی بھی اگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں. فار ایگزامپل بھائی، آپ کسی شاپنگ کارٹ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، یا پھر آن لائن شاپنگ اسٹور پہ جاتے ہیں. تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں، پروڈکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. بھائی یہ والا پروڈکٹ میں نے لے لیا، یہ والا لے لیا، دو تین پروڈکٹ فار ایگزامپل آپ نے گروسری آئٹم پہ خرید لیا. جب آپ اس کے کارٹ کے پیج پہ جاتے ہیں تو جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، وہ سارا ایک ایرے کے اندر اسٹور ہو رہا ہوتا ہے، اور اس ایرے کے اوپر لوپ چل کے وہ سارا کا سارا ڈیٹا آپ کو ایک ون بائی ون دکھتا ہے. تو وہاں پہ لوپ استعمال ہوتا ہے، پروگرامنگ کے ٹرمز میں بتا رہا ہوں. صحیح. اور جو نان پروگرامنگ ڈیفینیشن ہے وہ تو میں آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں بھائی کس طریقے سے ہوتی ہے.
बहरहाल अभी हम इसको चला के देखेंगे ना, तो फिर आपको मजा आएगा। सही है। लूप आर हैंडी इफ यू वांट टू रन द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन, ईच टाइम विद अ डिफरेंट वैल्यू। वैल्यू भी डिफरेंट कर सकते हैं। ऑफ्टन दिस इज द केस व्हेन वर्किंग विद एरेज। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जब क्लास में हमने एरे पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर, तो हमने पूरी बताया, मैंने आपको बताया था कि भाई मैं एरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम जो लूप्स हैं एरे के साथ यूज कर रहे होते हैं। तो ये वही वाली बात कह रहे हैं, और थोड़ा सा सिंटैक्स आ गया भाई, इस तरीके से चलता है। अच्छा भाई, डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स के ऊपर बात करते हैं, सिंटैक्स के ऊपर मैं भी आऊंगा। भाई जावास्क्रिप्ट सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स। फॉर इन, फॉर ऑफ, वाइल, डू वाइल। अच्छा भाई, क्या तरीका है भाई? लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड नंबर ऑफ टाइम, फॉर का जो लूप है। फॉर इन का चक्कर क्या है भाई? फॉर इन का जो लूप है वो क्या करता है, लूप थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये वाला लूप कवर करेंगे, अभी इसको हम नहीं कर रहे। लूप थ्रू द वैल्यू ऑफ एन आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट। सही है, तो आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट हमारे एरे भी उसी कैटेगरी में आता है, तो हम फॉर ऑफ को यूज कर सकते हैं। एक वाइल का लूप है, लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। सही है, तो इसमें हम कंडीशन पास करते हैं, वो भी देखेंगे। आल्सो लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। सही है, तो डू वाइल का क्या चक्कर है वो भी हम देखेंगे। ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि भाई डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स हैं। अब आप बोलेंगे सर हम तो जावास्क्रिप्ट से सीख रहे हैं, तो भाई टाइपस्क्रिप्ट में हमने यहाँ देखा हमें कोई लूप्स का सेक्शन नहीं मिला। प्लस अगर हम अपने रोड मैप पे आए, तो रोड मैप डॉट एस एच जो हम लोग वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, आपको यहाँ पे भी कोई खास लूप के बारे में कोई खास नया सिंटेक्स नहीं मिलेगा। और अगर आप जावास्क्रिप्ट के रोड मैप में आए, तो भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि लूप का, वो यहाँ कहीं पे होगा, ये देखें लूप। अच्छा भाई, लूप जो है ना बेसिकली एक हमारा कंट्रोल फ्लो के साथ भी है। सही है, कंट्रोल फ्लो, आप कंडीशनल स्टेटमेंट हमने यूज़ करी थी, वो हमारी कंट्रोल फ्लो है। और इफ एल्स जो हमने यूज़ करी थी, वो क्या कहते हैं, हमारी है। स्विच केस जो है वो हमारी कंट्रोल फ्लो के अंदर आती है। तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लूप्स एंड आइट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में हैं, तो आप देखें यहाँ फॉर लूप है, डू वाइल है, वाइल है, फॉर इन है, फॉर ऑफ है, ब्रेक कंटिन्यू क्या होता है वो है। सही। तो ये चीज़ भी इसमें आपको देख सकते हैं, और आप अपनी आके फर्दर लर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं फॉर के ऊपर क्लिक करूँ, तो भाई फॉर इज द स्टैंडर्ड कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सही है, तो ज़्यादातर कहना ये चाह रहे हैं कि भाई फॉर का जो लूप है वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में भी है। इट्स कॉमनली यूज टू आइट्रेट ओवर अगेन sequence or iterator are known as number of time and execute a piece of code for each iteration। ये सारी इंग्लिश है। सही है, तो बता रहे हैं कि भाई ये क्यों इसलिए कॉमनली यूज हो रहा होता है कि भाई एक सीक्वेंस है, एक एरे है, उसके ऊपर इसको हम यूज कर रहे होते हैं। बहरहाल इसके अलावा दो नीचे इन्होंने वो भी दी हुई है गाइड, तो भाई अगर आपको लूप के बारे में और जानना है तो यहाँ से जाके पढ़ लो। तो ये बेसिकली चीज़ें दिखाने का मकसद ये होता है आपको कि भाई आप सेल्फ लर्निंग करना सीख सकें और उसको समझ सकें। तो यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट आ गया और अभी हम इसको देखते हैं। भाई मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो अभी हम यहीं पे अटकते हैं। सही है, वीएस कोड में मैं आता हूँ भाई। फॉर लूप को मैं पहले आपको दिखाता हूँ भाई, इसका सिंटेक्स क्या है बेसिक। ये मेरी फाइल आ गई, और भाई बेसिक सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। सही है, तो फॉर लूप का भाई बेसिक सिंटेक्स क्या है कि भाई सबसे पहले आप क्या करते हो भाई, जैसे हमने देखा था भाई एक कीवर्ड होता है ना प्रोग्रामिंग को बताने के लिए, कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है, उसको कैसे पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। तो भाई जैसे हमने इफ के लिए इफ लिखा था, एल्स के लिए एल्स का कीवर्ड यूज किया था, इसी तरीके से फॉर का वर्ड भी हमारे पास है, और जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने बताया भाई फॉर का हम लूप लिखना चाह रहे हैं, और मैंने दो राउंड ब्रैकेट खोल दिए। जब दो राउंड ब्रैकेट मैंने खोल दिए, तो अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है भाई। तो जो इसका बेसिक सिंटेक्स है ना, अगर आप यहाँ पे आए, तो भाई ये क्या है, एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री। तो बेसिकली जब भी हम फॉर का लूप बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, तीन एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। अब एक्सप्रेशन वन क्या है भाई? एक्सप्रेशन वन इज एक्सिक्यूट वन टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक। एक्सप्रेशन टू डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। ये है ना, ये लाइन लिखी हुई है, समझे आप, कोड ब्लॉक है। जैसे यहाँ आई लिखा हुआ है, तो ये जो टर्मिनेटर आ रहा है आपके पास, सेमी कॉलन आ रहा है यहाँ पे। तो
मेरा सेमी कॉलन से मुराद मेरी भाई ये जो आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो आ रहा है भाई, ये हमारा सेमी कॉलन है, तो ये यहाँ पे ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन 1। फिर एक्सप्रेशन 2 यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, और ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन 3। तो इस तरीके 3 होते हैं, और किस तरीके से चलता है वो हम अभी देखते हैं भाई। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और नीचे आते हैं भाई। और इसकी पूरी डेफिनेशन है किस तरीके से चलता है, तो अभी हम इसको देखते हैं। भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने कोड में आता हूँ, और भाई यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर, यहाँ पे हम लिखते हैं लूप इनिशियलाइजर, लूप कंडीशन, लूप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, और ये हमारे पास आ गया। सही है, तो ये अभी एक बेसिक सा सिंटेक्स है। क्या है भाई, लूप इनिशियलाइजर का मतलब है कि भाई लूप कहाँ से स्टार्ट होगा वो हम यहाँ लिखते हैं। फिर लूप की कंडीशन है, मतलब आपने एक लूप चलाया है तो वो कब तक चलना चाहिए वो हम यहाँ लिखते हैं। और उसकी जो वैल्यू है, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्यों करवाते हैं, क्योंकि हम एरे वगैरह पे यूज़ करते हैं ना लूप। तो वहाँ पे होता ये है कि इंडेक्सिंग की हमें ज़रूरत होती है। आपको याद होगा जब हमने एरे का टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था 0 1 2 3, इस तरीके से हम उसमें से डाटा निकाल सकते हैं। अच्छा भाई, अगर मैं आप लोगों को लास्ट क्लास का कोड दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम फॉर लूप में जाएं तो हमने तो भाई ये सिंटेक्स देखा था भाई, इनिशियलाइजेशन, सही है, कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये आ गया हमारा मींस वेयर द लूप स्टार्ट कंडीशन। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, ये वाला आप लोगों के लिए सिंटेक्स ले आता हूँ ताकि आप लोगों को भाई ज़्यादा हार्ड ना हो। तो भाई ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, सही है। अब हम एक्चुअल इसका जो सिंटेक्स है वो अप्लाई करते हैं। तो भाई इनिशियलाइजेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन ये लिखी है, मीन्स वेयर द लूप स्टार्ट। तो भाई सही है, हमें पता है लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैंने बोला भाई लेट एक वेरिएबल बनाओ आई के नाम से। अच्छा, ये लूप के अंदर ही बनाना है, अभी लूप के बाहर हम नहीं बनाना चाह रहे। क्यों नहीं बनाना चाह रहे वो भी हम देखते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं भाई लूप जैसे ही लूप, ये जो आई का ताल्लुक है ना वो लूप से हो। अगर आप लूप के बाहर आई को एक्सेस करना चाहें तो नहीं मिले। अच्छा, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ताकि हमारी मेमोरी एफिशिएंट हो। जैसे ही हमारा लूप कंप्लीट होके आए तो ये वेरिएबल का हमारा काम भी खत्म हो जाएगा, तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम बोलते हैं भाई लूप हमारा स्टार्ट हो भाई 0 से, और भाई ये लूप कब तक चलना चाहिए, सही है। कंडीशन इज यूज टू चेक इफ द लूप शुड कंटिन्यू। तो भाई लूप को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो हम यहाँ से देखेंगे। तो भाई कंडीशन में मैं देता हूँ आई <<10 हो, सही है। तो भाई कब चलना चाहिए भाई, अगर आई छोटा है 10 से तो ये चलेगा, और आई प्लस प्लस कर दो। अच्छा, यहाँ पे भाई इंक्रीमेंट भी करा सकते हैं, वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करा सकते हैं अगर आपको रिवर्स चलाना हो। दो आपने कर्ली ब्रैकेट लगाए, और फिलहाल के लिए मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग आई। अब इसको चलाने का तरीका क्या है भाई, टी एस सी लिखूंगा क्योंकि मेरे पास टी एस कॉन्फ़िग की फाइल है, और इसको मैंने रन कर दिया। या फिर मैं दूसरा कर सकता हूँ, टी एस सी एंड एंड नोड DIST फॉर लूप डॉट JS। अच्छा, जैसे ही मैंने TSC का फो चलाया था तो यहाँ पे DIST का फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब जब मैंने इस फाइल को चलाया तो आप देखें भाई मेरे पास कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, आए उसको देखते हैं भाई। हमने बोला भाई आई छोट है 0 से, सही है। आई अगर बड़ा होगा 10 से तो चलेगा, हमने ये गलती कर दी। तो भाई हम इसको ऐसे कर देते हैं, आई छोटा, अब 0 छोटा है 10 से, हाँ है ना भाई, छोटा है ना, तो ये चलेगा। भाई कंसोल डॉट लॉग करेगा 0, और फिर वो आएगा और ये इसको क्या करेगा, प्लस प्लस कर देगा, तो अब हो जाएगा आई हमारा 1। फिर 1 चलेगा और चेक करेगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी भाई 1 जो है हमारा वो छोटा है 10 से, ट्रू। तो इस तरीके करते 0 से लेके 9 तक गिनती आएगी हमारी। मैं वापस चलाता हूँ भाई, सही है। तो आप देखें भाई 0 से लेके हमारे पास 9 तक गिनती आ गई। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, सही है। मैं इसको बोलता हूँ 5 तक चलो, ताकि मेरे लिए आसानी हो समझाना।
मैं पहले अपना टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे इसको चला देता हूँ। अब जैसे ही फॉर का लूप चलेगा तो आप एक चीज़ देखें भाई, लूप स्टार्ट होता है यहाँ से, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये जब लूप एग्जीक्यूट होता है ना, ये सिर्फ तभी चलती है। तो भाई आई क्या है, 0। ये लाइन फर्स्ट टाइम चलेगी जब लूप एग्जीक्यूट होगा। हमने क्या पढ़ा था भाई, इंटरप्रीटर होता है ना लाइन बाय लाइन। तो जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा, वो सबसे पहले पढ़ेगा भाई आई की वैल्यू क्या है, उसने कहा 0 रख दो, सही है। फिर उसने चेक किया भाई आई छोटा है 5 से, 0 छोटा है 5 से, उसने कहा हाँ। तो फिर वो कंसोल डॉट लॉग आई करा देगा, और फिर यहाँ पे आएगा और आई को प्लस प्लस कर देगा। फिर 0 + 1 कितने होगा भाई, 1। फिर वो आगे चेक करेगा भाई, 1 क्या कहते हैं जो हमारा वो छोटा है 5 से, बोलेगा हाँ। फिर वो कंसोल डॉट लॉग करा देगा 1, तो ये आपका आ गया 1। और फिर इसको प्लस कर देगा। इस तरीके से हमारा कोड चलता रहेगा। तो फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, फिर 5। अब 4 होगा फॉर एग्जाम्पल, तो भाई 4 छोटा है 5 से, हाँ। तो कंसोल डॉट लॉग करा दो 4, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4। और आई को प्लस प्लस कर दिया, अब हो गया 5। 5 छोटा है 5 से, नहीं। और हमने यहाँ पे कोई बराबर भी नहीं लिखा। अगर आप चाहते हैं तो मतलब 5 भी आए, तो आपको एक इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, तो इस केस में फिर 5 भी आएगा। क्योंकि हमने अभी खाली कहा था कि छोटा हो तो ही आए, और 5 5 से छोटा नहीं है, बराबर है दोनों। तो कंसोल डॉट लॉग नहीं चलता। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूं, तो भाई ये चल जाएगा। सही है भाई, 0 1 2 3 4 5, तो ये चल गया। अच्छा, तो भाई ये तो है हमारा बेसिक लूप, जो जिससे हम गिनती प्रिंट करवा सकते हैं। सही है, तो आई इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। और ये है हमारा बेसिक फॉर लूप दैट प्रिंट 0 1 2 3 4 5। सही है। तो ये तो हमने एक सिंपल सा एरे देख लिया। अब आप इसके अलावा क्या करा सकते हैं यहाँ पे। सही है, ये मैंने गैप डाल दिया ताकि वो नीचे से आए। अब हम बनाएंगे भाई इसी का उल्टा, अगर आप करें ना माइनस माइनस फॉर एग्जाम्पल, तो ये उल्टा भी रहता है। अगर आप 5 4 3 2 1 करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से चलाएंगे भाई। ये हमने कर दिया सेम जैसे लूप था ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में, क्योंकि मैंने जनरेट करवाया था ना, आपको आसानी ना हो। मैं बोलता हूँ भाई माइनस माइनस, सही है। और इस कंडीशन को उल्टा कर देते हैं कि जब आई छोटा हो 5 से तो चले, सही है, या बराबर हो 5 के। अब देखते हैं भाई इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। इससे हमारे पास कुछ इस तरीके से गिनती आनी चाहिए, 5 4 3 2 1 0। तो आए मैं इसको चलाता हूँ, पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, और फिर मैं कोड समझाता हूँ कि भाई ये गिनती उल्टी कैसे चलती है। सही है भाई। तो आपने देखा कि भाई 0 5 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 आ गया, सही है। और मैंने इसको नीचे जो कंसोल कराया, अच्छा मैंने कंडीशन गलत लगाई हुई है भाई। आई जो है वो, अगर आप यहाँ देखें तो हमने क्या था भाई, लूप को पढ़ते हैं कि चलता कैसे है। आई स्टार्ट हुआ 0 से, सही है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ से करेंगे भाई, आई स्टार्ट होगा हमारा 5 से। सही है भाई, आई स्टार्ट हुआ 5 से, और आई 5 जो है हमारा यहाँ पे होगा, सही है। अब वो चेक कैसे करेगा भाई, 5 हमारा बड़ा है या बराबर है 5 के, हाँ। तो भाई वो क्या करेगा, यहाँ लिख देगा 5। फिर 5 जो था हमारा आई, उसमें से माइनस माइनस हो जाएगा, अब हो जाएगा 4। 4 छोटा है या बराबर है 5 से, हाँ। तो फिर एक बार 4 आ जाएगा। इस तरीके से होते होते हमारे पास एक कंडीशन आएगी, और अब देखते हैं कि ये माइनस में जाता है या नहीं जाता, सही है। इस तरीके से हमारे पास ये चल रहा है। अब मैं इसको रन करता हूँ पहले, और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई होते होता है क्या। मैंने कहा था ना माइनस में वैल्यू आएगी। तो अगर ऐसा हो जाए आपके पास, तो कंट्रोल सी दबा के आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो भाई
हमें जो कंडीशन बनाई ना, हमने कंडीशन बनाई 5 से, सही। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं भाई कि ये कब तक चलना है, ये चलना चाहिए भाई जब तक 0 आ जाए, सही है। अब 5 हमारा छोटा या बराबर है 0 से। तो अब देखते हैं भाई अब क्या होता है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे ना। असल में मैं ये वो चीज़ें करा रहा हूँ जो कि थोड़ी कंफ्यूजिंग हो, ताकि मज़ा भी आया करने में। अच्छा भाई, अब क्या हुआ भाई, हमारी कंडीशन सही से नहीं चली। अगर हम इस कंडीशन को उल्टा कर दें और फिर देखते हैं, असल में ग्रेटर देन लेस देन का साइन में ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ बाद हाथ। तो आए इसको चलाएं, और फिर मैं देख बताता हूँ भाई ग्रेटर देन और लेस देन को याद रखने का तरीका क्या क्या होता है। सही है। अब इस केस में क्या हुआ, 5 4 3 2 1 0, हमने रिवर्स काउंटिंग जनरेट करवा ली। अब कोड समझते हैं होता है क्या है भाई। इनिशियली हमारे पास 5 क्या था, 5 हमारे पास एक वेरिएबल था। 5 हमने चेक किया भाई छोटा या बराबर है 0 से। नहीं, 5 हमारा बड़ा है, हमने उल्टा चेक किया ना भाई, 5 हमारा बड़ा है या बराबर है 0 के। बराबर तो नहीं है पर बड़ा है, सही है भाई, हमने यहाँ पे लॉक करा दिया 5। फिर 5 में से हमने माइनस करा दी वैल्यू, हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो मैंने ये चीज़ वहाँ क्लियर कराई थी, माइनस माइनस प्लस प्लस, अगर आप लोगों को याद हो। तो मैंने यहाँ माइनस माइनस कराया। तो उससे हमारे पास क्या हुआ भाई, अब आई की वैल्यू हो गई 4। 4 छोटा है या बराबर है 0 से। बराबर तो नहीं है 0 से, लेकिन छोटा है 4 0 से। वो सॉरी, 4 जो है हमारा बड़ा है, सही है। ये जो है ना ग्रेटर देन होता है, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ भाई। ग्रेटर देन, लेस देन, सही है। ये कुछ स्टाइल है भाई, अगर आप ये वाला जगह तो बड़ा है, ये वाला हो तो लेस देन है, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, लेस देन एन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये कुछ हमारे पास क्या है भाई, ऑपरेटर्स जो हमने पढ़े थे उसकी चीज़ है। तब अब आपको भी आसानी हो जाएगी, मुझे भी आसानी हो जाएगी याद रखना, क्योंकि ये सिंटैक्स जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। भाई अब हमने इस तरीके से करा, जब इसी तरीके चलता रहेगा, फिर एक वक्त आएगा भाई 5 जो है माइनस माइनस होकर 0 हो जाएगा, सही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई 5 जो है वो 0 से छोटा है, नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे 0 हो चुका है, 0 के बराबर है, हाँ तो 0 आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं 0 प्रिंट ना हो, तो आप इस वाली लाइन को, इक्वल को हटा देंगे, और फिर आप जब इसको चलाएंगे तो आपकी जो गिनती आएगी 5 से लेके 1 तक आएगी। 5 4 3 2 1। जब स्क्रीन को पॉज कर लेगा, कोड को चला के देख लेगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, सही है। तो ये मैंने 1 से लेके 5 तक की गिनती गिनवा ली। फिर एक और कंडीशन हो सकती है हमारे पास, अगर हम वापसी इधर आए फॉर लूप के इधर, तो भाई हमने अब तक फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स देखा जिससे हम नंबर जनरेट करा रहे थे। अब एक्सप्रेशन वन का बारे में बता रहे हैं कि भाई नॉर्मली यू विल यूज एक्सप्रेशन वन टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल यूज इन द लूप। ये वही वाली कहानी है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। एक्सप्रेशन टू के बारे में बता रहे हैं भाई कि एक्सप्रेशन टू की यूज होती है, वो आप यहाँ से पढ़ लेगा, सही है। कि भाई ऑफ्टन एक्सप्रेशन टू इज यूज टू इवेल्युएट द कंडीशन ऑफ इनिशियल वेरिएबल, तो वो चेक करने के लिए होता है कि भाई जो भी कंडीशन हमने लगाई है। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, जावास्क्रिप्ट डजंट केयर, एक्सप्रेशन टू इज आल्सो ऑप्शनल। तो ये कह रहे हैं भाई एक्सप्रेशन टू देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शनल है। अगर कहीं आपको अनलिमिटेड लूप चलाना हो, जिसे हम चलाना चाहें चला सकते हैं, तो वो भी कहानी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल के ऊपर है, क्योंकि जब तक मैं अगर इन सब चीज़ों की आपको एग्जाम्पल नहीं दूँ, तो आप लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो सकते हैं। अब मुझे लग भी रहा है कि वीडियो काफ़ी कंफ्यूज हो रही है, तो मैं थोड़ा इसको सिंपल रखता हूँ। एक्सप्रेशन थ्री के बारे में लिखा हुआ है कि भाई माइनस माइनस, पॉजिटिव इंक्रीमेंट, नेगेटिव इंक्रीमेंट कैसे होता है, वो बनाया हुआ है। लूप का भाई बेसिक जो वो है सिंटेक्स ये है, अगर आप वार के साथ यूज़ करेंगे तो लूप स्कोप बन जाएगा इसका। लेट के साथ यूज करेंगे तो फिर एक अलग हिसाब से चलेगा। बार और लेट में क्या चेंजेस आती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
और ये बता रहे हैं कि भाई वार करने से क्या होता है, और वो लूप री डिक्लेयर और डिक्लेयर, हमने लेट और वार का तो कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ है। ऐसा ना होना कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं इनको फटाफट निकाल रहा हूँ। अच्छा भाई, मैं अभी आपको बता दूं कि भाई आप जब भी लूप बनाए अभी लेट यूज करें, वार यूज ना करें। हमने पता था कि भाई वार में थोड़े से चेंजेस होते हैं, थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, तो फिलहाल अभी आप वार यूज नहीं करेगा, लेट यूज करेगा वेरिएबल बनाने के लिए। और जब हम एडवांस टॉपिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो मैं उसमें ये चीज़ों को क्लियर कराऊंगा। और अगर अभी भी ज़्यादा जल्दी है तो आप इस टेक्स्ट को यहाँ से पढ़ सकते हैं कि भाई क्या होता है, री डिक्लेयर करता है, वेरिएबल आउटसाइड द लूप करता है। वो आप लोग इसको खुद पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा होगा। और चीज़ें भी मैंने सामने इसलिए आप लोगों के लिए रखी हुई हैं ताकि आप लोगों को दिखे और आप लोग इसको फटाफट से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, लूप वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, आ, तो थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं भाई। ये बता रहे हैं भाई फॉर ऑफ और फॉर इन का जो है नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा, वाइल का लूप आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो सही है भाई। लेकिन अभी तक हमने कोई खास प्रोडक्टिव चीज़ नहीं देखी जैसे हमने क्लास में कराया था मैंने। तो आए हम एक चीज़ करते हैं भाई, हम लूप की मदद से कुछ चीज़ बनाते हैं भाई। सही है भाई, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे क्या कराना है, जनरेट कराना है, सही है। GEN RAT जनरेट कराते हैं हम, इसकी स्पेलिंग को सही कर लेते हैं। GNERAT जनरेट टेबल यूजिंग फॉर लूप। अच्छा भाई, लूप का समझ लें कि आपको याद होगा कि भाई हम जब क्लास में थे ना, बाद अखात में बोलती थी अगर कोई चीज़ हम कंप्लीट नहीं करते थे तो मैं समय बोलती थी कि भाई घर से 10 बार लिख के लाओ कि भाई आपको ये काम करना है, 50 बार लिख के लाओ कि मिस आइंदा से हम होमवर्क नहीं छोड़ेंगे। तो अगर इस टाइप का काम मैं आप लोगों को दे दूं क्लास में कि भाई आपको 100 बार लिखना है कि मैं आप आइंदा के बाद क्लास में लेट नहीं होंगे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सही है। तो भाई पहले तो मैं वो आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं, मतलब एक मैसेज को मल्टीपल टाइम कैसे प्रिंट कर सकते हैं भाई। तो भाई सिंटेक्स हमारा वही है, फॉर, सही है। लेकिन इससे पहले मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ, और इसको भी हम रखते हैं, सही है, और इसको भी हटा देते हैं, सही है। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई आपने नंबर्स तो देख लिए कैसे प्रिंट होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये आप देखें एल जो लेट है, हमने आई कहाँ से स्टार्ट किया, 1, और इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1 से लेके 10 तक की अभी गिनती प्रिंट लॉक कराएगा अगर मैं कंसोल डॉट लॉक कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई 10 बार लिखा हुआ है कि आ, मैं क्लास में लेट नहीं होऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लास में लेट हुआ है और मैं इसको यहाँ मैसेज दूँ, मैं क्लास में लेट नहीं होऊंगा इन फ्यूचर, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूँ, अगर 10 भी नहीं, मैं बोलता हूँ 100 बार आपको लिख के लाना है, तो आप कितना हार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोग्रामिंग का टीचर आपको ऐसी कहानी दे तो फिर क्या होता है, मैं इसको वापसी रन करता हूँ और आप देखिएगा कि सीन क्या होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा 100 बार लिखा हुआ आ गया आपके पास, मैं क्लास में लेट नहीं होऊंगा इन फ्यूचर में। तो अगर ऐसी चीज़ अगर उस वक्त हमारे पास होती तो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास ये चीज़ भी अवेलेबल है। अच्छा भाई, इसको मैं कर देता हूँ कि भाई 10 तक ही चलो आप, क्योंकि हम तो टेबल जनरेट करा रहे थे। अब मैं बोलता हूँ भाई लॉग, सही है। अब सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप लोगों को टेक्स्ट के अंदर कॉनकैटिनेशन करवानी हो, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैक टिक का आइकन यूज कर रहा हूँ। अगर आपके कीबोर्ड में 1 2 3 4 5 है, अच्छा मैं एक सेकेंड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर आपको दिखा दूँ कि ये जो सिंबल्स हैं ये इनवर्टेड कॉमा नहीं है, ये कुछ और है। मैं क्या करता हूँ भाई, आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में दिखाता हूँ कि ये आता कहाँ है। तो भाई ये हमारा कीबोर्ड का लेआउट है, और आप देखें कि हमारे पास ये जो 1 आ रहा है ना, 1 के बराबर में ये आ रहा है, एक मद्दा जैसा निशान है, और एक ये बैकटिक है। तो ये जो बैकटिक है ना, ये डिफरेंट है हमारा ये वाले इनवर्टेड कॉमास से। तो ये आपकी जो कीबोर्ड में जब 1 2 3 की लाइन है, उसमें आपको 1 के बराबर में ये मिल जाएगा। तो वापसी में इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ कि भाई ये वाला जो हमारा है ना,
ये वाला सही है, ये जो वाइट वाइट हो रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास जो बटन वाली कहानी है होती है। तो ये छोटा सा निशान आ रहा है ना, हमें ये निशान चाहिए। तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा भाई, वो तो हमने देख लिया कि भाई ये निशान कहाँ से आता है। अब इसमें हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, ये सही लेगा। मज़ा क्या आता है इसमें, इसमें मज़ा आता है हमारे पास कि हम इसमें वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ खाली टू लिख दूँ, सही है, और मैं टेबल जनरेट करा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ टू का टेबल जनरेट कराता हूँ। अब टेबल हमारा कैसा होता है भाई, टेबल हमारा अगर आपको याद हो स्कूल में, तो हम कुछ इस तरीके से लिखते थे भाई, टू एक्स, सही है, वन इक्वल टू, सही है। तो कुछ इस तरीके से हमारा टेबल होता था। तो भाई इस हिसाब से टू लिखता हूँ मैं, एक्स लिखता हूँ, सही है। और अब ये जो वन टू है ना, आपको याद होगा हमने कंसोल डॉट लॉग आई कराया था, तो हमारे पास ये नंबर आता था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल पास कर दूंगा। मैंने डॉलर का निशान लगाया और दो कर्ली ब्रैकेट लगा लिए। इसके अंदर मैं अपना वेरिएबल पास कर सकता हूँ, मैंने लिख दिया आई, सही है। और मैं खाली अभी इतने से कोड को चलाता हूँ और दिखाता हूँ आपको होगा क्या, ताकि थोड़ा थोड़ा करूँगा ना तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप देखें जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा, तो आप देखें भाई, टू वन ज़ा, टू टू ज़ा, टू थ्री ज़ा, टू फोर ज़ा, इस तरीके से हमारे पास टेन तक आ गया है, सही। अब हमारे पास क्या करना है हमें, कि इससे आगे की कहानी करनी है। इससे आगे की कहानी करने के लिए हमें एक इक्वल का साइन डालना है, सही है। तो हमारा भाई यहाँ तक तो हो गया। अब असल कहानी है कि भाई ये जो नंबर्स है ना, कि टू और टू को मल्टीप्लाई कराओ तो फोर आएगा, टू थ्री को कराओगे तो सिक्स आएगा। इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। मैंने एक और वेरिएबल पास करने के लिए ये बनाया और दो कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, सही है। और मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए बोला भाई, टू को मल्टीप्लाई करा दो जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है। अगर आप यहाँ देखें, ये जो आई है, इस आई से हमारे पास क्या बन रहा है, हमने एक्स लिखा था एज इट इज ऐसे ही आ गया एक्स। हमने यहाँ आई लिखा तो वो नंबर बन जाता है, वन टू थ्री फोर आ रहा है। तो मैंने बोला भाई टू को वन से करा दो, फिर टू को टू से करा दो, तो जब इसी जैसे लूप चलता रहेगा, वो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा, सही है। तो भाई अब मैं अगर इसको चलाऊं, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो आप देखें हमारे पास अल्लाह का शुक्र है पूरा का पूरा टेबल आ गया। अब इसमें एक मसला है कि भाई ये सब जगह टू दिखा रहा है, ऐसा क्यों है भाई। आप यहाँ देखें, मैंने टू मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया, हमें वन नहीं करना। हमें, क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, वन टू थ्री फोर, हमें इससे करवाना था। तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। और जब आई लिख देंगे हम और इसको चलाएंगे, तो आप देखें आपके पास इंशाल्लाह एक प्रॉपर टेबल जनरेट हो जाएगा। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, और इस तरीके से आपका 10 तक टेबल जनरेट हो गया। आप चाहते नहीं भाई मुझे तो 15 तक देखना है, आप यहाँ से चेंज करके इसको 15 कर दें, सही है। अब जैसे ही 15 करेंगे और इसको चलाएंगे, तो भाई नॉर्मली टेबल तो हमने 10 तक याद करा है ना स्कूल में, आपको देखे 15 तक भी टेबल चलेगा। तो आपके ऊपर है भाई, आप इस कंडीशन को चेंज करें और कितना टेबल चलाना है आप कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा और डायनामिक कर सकते हैं भाई, कि मैं अगर इधर एक वेरिएबल बना दूं, कॉन्स टेबल, सही है, टेबल नंबर लिख देता हूँ मैं, सही है, NUM। और यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ना, हम इसको भी यहाँ पे एज अ वेरिएबल पास कर देते हैं। हमने क्या देखा था भाई, बैक टिक के अंदर अगर आपको वेरिएबल पास करना हो, तो हम डॉलर का निशान लगाते हैं और दो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, हमने लिख दिया। सेम अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँ और वेरिएबल का नाम लिख दूँ, सही, तो भाई इससे हमारा क्या होगा, एक डायनेमिक हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई फाइव का टेबल जनरेट करूँ, एक जगह नंबर चेंज करूंगा, फाइव करूंगा और इसको मैं रन कर दूंगा। तो इससे हम एक जगह नंबर चेंज करेंगे। हमने वेरिएबल सीखा था ना कि भाई किस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि भाई फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, इस तरीके से 15 तक आ रहा है। 10 तक करना है भाई, यहाँ तक आप कर लो। तो भाई इस तरीके से आपका जो टेबल है वो जनरेट हो सकता है यूजिंग लूप। अब हम आ जाते हैं और एडवांस टॉपिक के ऊपर। अच्छा भाई,
اب ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نے لوپ دیکھ لیا کہ بھائی اس طریقے سے لوپ ہوتا ہے. لوپ کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے بھائی بریک اور کنٹینیو. اگر یہاں پہ دی ہوئی ہو تو ہم اس کو کر لیں گے، ادروائز ہم اس کو ابھی فی الحال کے لیے اسکپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر بریک اور لوپ کو آپ کو سمجھنا ہو تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. سرٹین کنڈیشنز کے اوپر ہم لوپ کو بریک کرا سکتے ہیں اور اسکپ کرا سکتے ہیں. فار ایگزامپل بھائی یہ تو ہو گیا ہمارا لوپ. صحیح ہے، یہ سارے سینٹنس کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں. صحیح ہے، تو یہ کچھ اس طریقے سے ہمارا جنریٹ کرتا رہے گا. یہ ایک پیٹرن ہے ہمارا. صحیح. اور یہ تو ہو گیا ہمارا کوڈ. میں یہاں پہ تھوڑی سی لائن ڈال کے لاگ یہ ڈال دیا تاکہ ہمارے پاس ایک ڈیوائڈر آ جائے. تو بھائی ہم نے فور کا لوپ پڑھ لیا اب تک. اس کے بعد اگر آپ کو بریک لکھنا ہے، فور لوپ وتھ تب بریک تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ بھائی بریک اسٹیٹمنٹ کس طریقے سے چلتی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ خالی آڈ نمبر آئے. صحیح ہے، ایک سے لے کے 10 کے آڈ نمبر آئے. صحیح ہے، میں ایک لوپ بناتا ہوں. میں بولتا ہوں فور دا راؤنڈ بریکٹ. صحیح ہے، ایک سے لے کے یہاں آپ یہاں دیکھیں بھائی آئی آ رہا ہے اور یہ آ گیا. اور میں نے اس کو ایسے کر دیا اور میں نے چیک کرایا کہ بھائی اگر اف آئی کا ماڈیولس 2 = 0 سے تو آپ کیا کرو. یہ تو میتھس ہے نا، میتھ اگر آپ کو آتی ہوگی تو یہ چل جائے گا. کنٹینیو اور ایلس لگا کے میں نے اس میں بول دیا کہ بھائی لاک کر دو آئی. کوڈ کو رن کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا. آڈ نمبر کون سے ہوتے ہیں بھائی ہمارے؟ ون کیا کہتے ہیں 1 3 5 7 9. آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا نا کہ بھائی وہ نمبرس آڈ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ٹیبل کے علاوہ کسی اور ٹیبل میں نہیں آتے. جیسے فار ایگزامپل 1 اپنے ٹیبل کے علاوہ کسی میں نہیں آتا، 3 کسی اور ٹیبل میں نہیں آتا، 9 آ جاتا ہے 3 کے ٹیبل میں. لیکن نارملی یہ جو نمبرز ہیں 1 3 5 7 یہ اپنے ٹیبلز کے علاوہ نہیں آتے. اور 9 صرف اور صرف 3 میں آ جاتا ہے نارملی. تو بھائی یہ وہ نمبرز ہوتے ہیں جو کہ اپنے ٹیبل کے علاوہ کچھ نہیں آتے. اس کی لاجک کیا ہے بھائی؟ میں کوڈ تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. بھائی آئی اسٹارٹ ہوا 1 سے. آئی ہمارا چھوٹا ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا نا بھائی چھوٹا بڑا کیسے بدلتا ہے. یہ ابھی ایرو کا نشان اس طرف ہے تو آپ نے دیکھا ہم ادھر آئے، ہم نے دیکھا بھائی چھوٹا کیسے ہوتا ہے بھائی یہ رہا. تو لیس دین ادھر ہوتا ہے اور ایکول ٹو ہوگا، ایکول لگا ہوا تو لیس دین ان ایکول ٹو. تو بھائی یہاں پہ ہم نے دیکھا لیس دین ایکول ٹو. آئی چھوٹا یا بڑا برابر ہے 10 سے. تو بھائی برابر تو نہیں ہے، چھوٹا ہے پر. تو 1 ہمارا جو ہے چھوٹا ہے تو پھر اس نے وہ یہاں پہ آئے گا اور پھر اس آئی کا ماڈیولس نکالے گا. اس سائن کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ماڈیولس. صحیح ہے، تو آئی کا جب ماڈیولس نکالے گا اور چیک کرے گا بھائی ریمائنڈر اگر 0 ہے. صحیح ہے، اگر ریمائنڈر 0 ہے تو اس کو کنٹینیو کر دو. کنٹینیو مینس اسکپ. صحیح ہے، کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسکپ دا ریسٹ آف دا کوڈ اینڈ گو ٹو دا نیکسٹ آئٹریشن. تو یہاں سے اسکپ ہو جائے گا اور یہ ایلس ویلس کچھ بھی نہیں چلے گا اور یہ واپسی ادھر آ جائے گا اور پھر اس کو 2 کر دے گا. صحیح. اب جیسے کہ فرسٹ ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ بھائی جب آئی جو ہے چھوٹا ہے اور ہمارا آپ یہاں دیکھیں 1 آ بھی رہا ہے تو اس کیس میں یہ بھائی جب آئی کا ماڈیولس نکالے گا. اس کو میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی آپ ادھر آئے، میں نے یہاں پہ کنسول کھول لیا. صحیح ہے، اور ماڈیولس کام کیسے کرتا ہے وہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو بھائی. کہ ادھر آئے ہم، میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا تاکہ آپ کو دکھ جائے. اس کو چھوڑیں بھائی. میں نے کیا بولا بھائی 1 کا ماڈیولس کا سائن لگا لے اور ہمارے پاس مثال کے طور پہ 2 سے ہے. صحیح ہے، تو بھائی 1 آیا اور یہاں پہ کیا تھا بھائی؟ ہم نے کنڈیشن بھی لگائی تھی نا کہ اگر ایکول ہے 0 کے تو کنٹینیو کرنا. 0 کے ایکول نہیں تھا تو اس نے کیا کرا بھائی؟ کنسول ڈاٹ لاگ آئی کر دیا تو 1 آ گیا. پھر سیم کنڈیشن آپ چلائیں گے 2 پہ تو جب 2 اور 2 کا ماڈیولس نکلے گا تو ہمارے پاس 0 آ گیا. جب 0 آ گیا تو بھائی 0 والی کنڈیشن میں یہ والی کنڈیشن ہو گئی ٹرو اور اس نے کنٹینیو کر دیا تو ہمارا 2 یہاں پہ کہیں لاگ نہیں ہوا. پھر ہمارا 3 آیا تو جب آپ 3 کا ماڈیولس نکالیں گے
सही है। 3 मॉड्यूलस 2, तो 1 आया, तो 1 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर उसने 3 प्रिंट कर दिया। फिर आप सेम चीज़ जब 4 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। फिर आप 5 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। फिर आप 6 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से नंबर चलते रहेंगे और हमारे पास ये एक प्रिंट होता है, एक नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि भाई 2 4 6 8 वाले जो है हमारे इवन नंबर हो, जो कि बराबर होते हैं, तो उनको भी आप करा सकते हैं। उनको कैसे कराएंगे भाई, आप इस कंडीशन की जगह 0 की जगह 1 करा देंगे, तो 1 वाले कंटिन्यू हो जाएंगे और वो चल जाएंगे। तो ये काम आप चाहे खुद कर सकते हैं, मैं नहीं करा रहा। ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर लें, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं भाई, मैंने अभी यहाँ पे ऑड नंबर्स प्रिंट करा है, आप इसको इवन कर लो। आप चाहो तो 100 तक भी लिख दो, तो ये 100 तक चलेगा। वो भी आप इसको एक्सपेरिमेंट कर लेना। तो भाई ये तो था कंटिन्यू का। सेम अगर आप चाहते हैं भाई सर्टेन नंबर के बाद ब्रेक हो जाए, सही है। मैंने बोला कि भाई, आपने अभी पढ़ा था ना कि भाई फॉर के अंदर ये वाली जो कंडीशन होती है या ऑप्शनल होती है। तो अगर मैं बोलूं फॉर लूप विथ ब्रेक स्टेटमेंट दैट प्रिंट 1 to 10, सही है। और सेम लूप है भाई, आई 1 से स्टार्ट हुआ, 10 से हुआ, और मैं चलाता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100 तक चल रहा है, या फिर मैं अगर ये कंडीशन ही ना दूं और एक मैंने ये लगा दिया, और अब देखते हैं क्या होता है भाई। लॉग, अच्छा चेक करो, इफ आई, अच्छा भाई, ग्रेटर देन 10 हो, मतलब, तो क्या करो भाई, लूप को ब्रेक कर दो। अच्छा अब होगा क्या भाई, मैंने ये नहीं बताया कि लूप कब तक चलना चाहिए, सही है। मैंने क्या करा भाई, एक इस तरीके से बता दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया। देखते हैं सिंटेक्स एरर आता है क्या आता है, अभी हम इसको देखते हैं। मैंने बोला भाई आई अगर मतलब 10 से बड़ा जैसे ही हो जाए तो इस लूप को यहीं पे ब्रेक कर दो, एल्स, सही है। अगर अगर ये इससे बड़ा नहीं है तो भाई क्या करो, लॉग आई कर दो। अच्छा आप चाहे नाम आई के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, ये वेरिएबल्स के नेम है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ और अब चला के इसको देखता हूँ कि क्या आउटपुट हमारे पास आता है। तो भैया ये लूप हमारा चल गया फॉर का, तो आप देखें भाई 1 से लेके हमारे पास 10 तक गिनती आ गई। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉग लिख देता हूँ इस तरीके से, और ये यहाँ से हट गया। तो भाई हमने अभी जो फॉर का लूप कवर किया ना, वो हमने काफ़ी एडवांस लेवल पे करा, हमने इंक्रीमेंट भी देखा, हमने डिक्रीमेंट भी देखा, और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो अब आप देखें लूप हमने बताया नहीं कहाँ से कहाँ एंड होगा। अगर मैं ये हटा दूँ तो फिर आप देखें हमारे पास एरर आएगा। हमने एक कंडीशन स्किप करानी थी, एक्सप्रेशन जो पढ़ी थी ना हमने हमने क्या पढ़ा था भाई, ऑप्शनल थी। तो अगर आप यहाँ पे आके एक ये ऐसे डाल दें तो भाई ये चलेगा। तो ये वाली कंडीशन इसको मिली नहीं, सेपरेट हो रहा है, ये जो है ना हमारा टर्मिनेटर कॉलन, ये सेपरेटर है। हमने यहाँ कुछ पास नहीं किया, तो वो भी एक तरीके से अनलिमिटेड लूप चल रहा है। जैसे ही 10 पे आया हमने बोला भाई ब्रेक लगा लो। अगर हम ये नंबर बढ़ा कर देंगे 100 तक, तो 100 तक चल जाएगा, 1000 तक कर देंगे 1000 तक चल जाएगा। तो जो भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी वो वहाँ पे ब्रेक लगा देगा। तो ये एक हमारे पास इसका तरीकाकार है भाई ब्रेक का। तो हमने भाई ये जो दोनों चीज़ें है ना, ब्रेक, ब्रेक का कीवर्ड हमने यूज़ किया, यहाँ कंटिन्यू का कीवर्ड यूज़ किया, और इसे हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, सही है। क्यों, क्योंकि ये लाइन में नॉर्मली लिखी जाती है, तो ये सिंगल लाइन इज काइंड लाइक स्टेटमेंट, सही। तो भाई हमने लूप को यूज़ किया भाई इफ एल्स के साथ 2 दफ़ा, सही है, यहाँ भी यूज़ किया और यहाँ भी यूज़ किया। तो भाई ये तो थे हमारे फॉर लूप्स। अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि ये वीडियो और लंबी होगी। तो भाई हमने ये पढ़ लिया लूप का सारा। आप देखें भाई हमने यहाँ पढ़ा था भाई एक्सप्रेशन 1 भी ऑप्शनल है और एक्सप्रेशन 2 भी ऑप्शनल है, इस तरीके से। तो सारी की सारी एक्सप्रेशन ऑप्शनल है और 3 भी ऑप्शनल है। अगर आप खाली फॉर लगाएंगे तो कुछ अलग ही चीज़ पैदा होगी। नॉर्मली मैंने भी कभी इस तरीके से लूप यूज़ नहीं किया। अब हम इसके बाद लूप पढ़ते हैं फॉरेन का, और देखते हैं भाई फॉरेन किस चीज़ के लिए है।
अच्छा भाई, पानी मैंने पी लिया, अब थोड़ी हिम्मत आ गई है। तो भाई चले, अब हम फॉरेन के लूप के ऊपर आते हैं। अच्छा भाई, फॉरेन का लूप जो है ना, वो चलता है हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये वाला लूप कवर करा दूंगा। तो अभी हम फॉरेन के लूप को स्किप करेंगे, जब हमारा ये हो जाएगा तो हम इसको क्या कहते हैं, दूसरे तरीके से यूज़ कर लेंगे। आप फॉरेन को चाहें तो जो हमारा लूप है एरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमने एरे पढ़े हुए थे, सही है। तो हम क्या करेंगे भाई, फॉरेन के लूप को एरे के साथ यूज़ करेंगे। चाहे तो ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, अभी हम फॉरेन को एरे के साथ पढ़ते हैं भाई। फॉरेन ओवर एरे, सही है। तो भाई हम सबसे पहले तो एक एरे बनाते हैं फॉरेन के लूप के लिए। अच्छा, पहले मैं ये देखूं भाई, हमने क्लास में पढ़ा था फॉरेन लूप या नहीं। तो हम इधर आ जाते हैं। सही है, फॉर ऑफ पढ़ा था, तो अभी फॉरेन का हम एरे के साथ भी देख लेते हैं। तो भाई मैं एक इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और एक न्यू फाइल बनाता हूँ, फॉर डैश इन डैश लूप डैश एरे। सही है, तो अभी हम एरे के साथ इसको यूज कर लेते हैं। एरे के साथ हम इसको यूज करेंगे, और ताकि हमें, क्योंकि हमने एरे तो पढ़ लिया है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। बेसिक सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, सही है। तो भाई इस तरीके से कुछ होगा, आप फॉर लिखोगे और वेरिएबल का नाम लिखोगे, जो भी आपको एरे में से चाहिए, और यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिख दोगे, जो भी लाइन आपको प्रिंट करानी है। तो ये इसका एक बेसिक सिंटेक्स है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ शॉपिंग लिस्ट है या ग्रोसरी आइटम है। सही है, अब इसकी मैं स्पेलिंग को पहले सेट कर लूँ भाई। अच्छा, तो भाई ग्रोसरी आइटम हमारे पास एक एरे है, और GROCERY ग्रोसरी आइटम, और हमने यहाँ पे कुछ आइटम ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप गए थे, आपने कुछ खरीद लिया, नाश्ते के लिए ले लिया या कुछ और ले लिया। सही, और एक मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लोर ले लिया, सही है। तो भाई हमने एरे बनाया, सही है। एरे का हमने बता दिया भाई, ये एक एरे किसका है, स्ट्रिंग का, सही है। तो हमने एक एरे लिया स्ट्रिंग का, जिसका नाम रख दिया हमने ग्रोसरी आइटम के नाम से। अब हम चाहते हैं कि भाई ये ग्रोसरी आइटम इस हमारे पास वन बाय वन प्रिंट हो। हमने एक तरीका देखा था भाई, कि हम इंडेक्स नंबर देते हैं ना, कि भाई 0 से ये निकालो, 1 से ये निकालो, 2 से ये निकालो। अगर मैं चाहता हूँ एप्पल निकालो, तो क्या लिखूंगा भाई, इनके जो इंडेक्सेस हैं हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है ना भाई, 0, 1, 2, 3, 4, सही है। इस तरीके से हमारे इसके इंडेक्सेस चलते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें, तो अगर मैं फॉर लूप से चलाऊं, तो मुझे इंडेक्स इंडेक्स की कोई कहानी नहीं करनी। इंडेक्स वाली कहानी करनी है तो आप फॉर का लूप यूज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ जिसकी लेंथ है, इससे भी आप काम करा सकते हैं। मैंने बोला भाई कॉन्स्ट ले लो आप, एक आइटम इन ग्रोसरी आइटम, सही है, दो गने कर्ली ब्रैकेट खोले। अच्छा, ये लूप है वही वाला फॉर, लेकिन क्योंकि हमने वो जो ऑप्शनल पैरामीटर्स है वो निकाल दिया और इसमें कुछ और पास कर दिया, तो ये फॉरेन के तरीके से लूप बन गया। अगर मैं यहाँ लॉग कराऊं, आई हैव बॉट, सही है, और भाई ये ग्रोसरी के अंदर से आइटम पास कर रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हम खाली आइटम लिख देंगे, सही है। अच्छा भाई, अभी देखें, हमने एक और नया सिंटेक्स लिखा है। हमने पहले एक स्ट्रिंग लिखी और उसको प्लस करा दिया, मतलब कॉन्केटिनेट करा दिया जो भी वैल्यू आई। आप ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, या अभी हमने जो बैकटिक वाला तरीका देखा था वो ज़्यादा यूज़ करना बेहतर होगा। तो ये दोनों बेसिकली सेम ही करेंगे काम। अगर मैं इसको बैकटिक से भी दिखा देता हूँ वो सिंटेक्स कैसे बनेगा। बैकटिक वाला हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले आपने कंसोल डॉट लॉग ये कर लिया और दो बैकटिक डाल दिए, आई हैव बॉट, और फिर आइटम इस तरीके से आ जाएगा। तो दोनों तरीके
एक ही काम करेंगे। सही है, तो मैंने नया तरीका भी लिख दिया, पुराना तरीका भी आपको दिखा दिया। अब मैं क्या करूँगा भाई, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए मैं बोलूँगा फॉर डैश इन डैश लूप डैश ए डबल आर ए वाई एरे डॉट टी एस। नहीं बल्कि जे एस होगा ना, क्योंकि डी आई एस टी के फोल्डर में जब ये फाइल जाएगी तो ये जे एस बन जाएगी। तो भाई मैं यहाँ आ गया। तो भाई यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, आई हैव बॉट आइटम 0, आई हैव बॉट आइटम 1, आई हैव बॉट आइटम 2, आई हैव बॉट आइटम 3 4 5। जो इंडेक्स नंबर था वो हमें यहाँ से रिसीव हो गया। अब हम चाहते हैं कि भाई हर इंडेक्स की उसकी वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर दे। तो हम क्या करेंगे भाई, ग्रोसरी आइटम में आएंगे, और ग्रोसरी आइटम लिखने के बाद हमने क्या सीखा था भाई, इंडेक्स आइटम को एक्सेस करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो अब मैंने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, और सेम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ भाई, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे तो ये काम आपका कर जाएगा। तो वो बेसिकली अब ये जो है हमें फॉरेन बेसिकली हर आइटम का इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। तो अब हम इसको अगर चलाएंगे तो अब आप देखें क्या होता है। सही है, आई हैव बॉट ब्रेड मिल्क बटर एप्पल राइस फ्लावर, तो सेम सारे के सारे इजीली हमारे पास लिस्ट हो गए विथ हमारे कस्टम मैसेज के साथ। तो भाई ये है हमारा फॉर ऑफ का लूप। सही। तो अगर आप यहाँ आए, हम लोग जहाँ फॉर ऑफ पढ़ रहे थे, तो भाई इस तरीके से एरे होगा, एरे को ऊपर कर सकते हैं। अच्छा भाई, अगर आपको याद हो क्लास में मैंने ये वाला लूप नहीं कराया था, उससे कोई रीज़न था, मैंने इसकी जगह फॉर ऑफ यूज़ कराया था, फॉर ऑफ ज़्यादा बेहतर था। अब आप देखें ये येलो बॉक्सेस में है, ये यहाँ पे एक तरीके से वार्निंग या फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। तो ये कह रहे हैं भाई, डू नॉट यूज फॉर इन ओवर एन एरे इफ इंडेक्स ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। सही है। तो ये कह रहा है कि भाई फॉरेन के लूप को कोशिश करो एरे पे ना यूज करो, क्योंकि अगर इंडेक्स ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तो हो सकता है भाई इसके अंदर कुछ मसले मसाइल है। वो क्या है भाई, द इंडेक्स ऑर्डर इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट, द एरे वैल्यू मे नॉट बी एक्सेस इन ऑर्डर यू एक्सेप्ट। सही। तो ये बोल रहा है कि भाई इसकी जो वो है इम्प्लीमेंटेशन है, डिपेंड करती है एरे की वैल्यू के ऊपर, और वो जो है एक्सेस होती है मे नॉट बी एक्सेस इन ऑर्डर। सही है, तो हो सकता है बाद अगर इंडेक्स भी इसके आगे पीछे आ जाए। तो वो इस चीज़ को कह रहा है कि ध्यान रखो। तो वो क्या कह रहा है भाई, इट इज़ बेटर टू यूज अ फॉर लूप, तो फॉर का लूप चला लो इसकी जितनी भी एरे की लेंथ हो उसके साथ, या फॉर ऑफ का लूप चला लो, या फिर फॉर ईच का एक मेथड होता है एरे के अंदर, वो यूज कर सकते हो व्हेन द ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, जब आपके पास ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या है भाई, आप देखें हमारे पास ब्रेड था, ब्रेड आया, मिल्क आया, बटर आया, एप्पल आया, राइस आया, फ्लावर आया। लेकिन इनके हिसाब से भाई कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ हमारे पास डिफरेंट आउटपुट आ जाए। सही। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो फंक्शन चलता है फॉरेन, तो हो सकता है कि यहाँ पे इंडेक्स के एरे के जो आपके पास ऑप्शन है, इंडेक्सेस चेंज हो जाए। तो ब्रेड मिल्क बटर एप्पल राइस फ्लावर, ब्रेड मिल्क बटर एप्पल राइस फ्लावर अभी तक हमारे पास सही आ रहा है। तो भाई ये था हमारा फॉर ऑफ का लूप जो कि हमने यूज़ किया था। एरे डॉट फॉर ईच का एक मेथड है। सही। तो ये हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप एरे के ऊपर डॉट लगाएंगे और फॉर ईच का फंक्शन आ जाएगा। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी हमारे हाई ऑर्डर फंक्शन हमारा टॉपिक नहीं है। हम आ जाते हैं भाई फॉर ऑफ के ऊपर। द जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ स्टेटमेंट लूप थ्रू द वैल्यू ऑफ एन आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट। अच्छा, आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट क्या है भाई सर, ये तो आपने पढ़ाया नहीं। भाई आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट हमारे पास भाई क्या क्या है, एरे, स्ट्रिंग, मैप, नोडलेस और मोर। सही है। तो हमने भाई एरे पढ़े थे। सही है। आप इस लूप को स्ट्रिंग के ऊपर भी चला सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब आपने सबसे पहले कोई मैसेज लिखा स्ट्रिंग के अंदर और उसके ऊपर लूप कर दिया तो भी चल जाएगा। एक मैप भी हमारी डेटा टाइप है, और नोड लिस्ट भी हमारी डेटा टाइप है, ये सारी की सारी डेटा टाइप्स हैं। सही है। तो आप इसके ऊपर ये वाला काम चला सकते हैं। अभी हमने भाई दो चीज़ें पढ़ी हुई थी, एरे और स्ट्रिंग, तो हम उसके ऊपर चला के देख लेते हैं। सही है। तो भाई हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने कोड के ऊपर, और क्या करते हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं फॉर इन लूप, तो हम इधर आ जाते हैं ओ फॉर ऑफ। तो मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ और लिखता हूँ फॉर डैश ऑफ डॉट एंड फॉर ऑफ डैश लूप डॉट टी एस। सही है।
मैंने एक नई फाइल बना ली, इसमें हम फॉर का लूप लिखेंगे, फॉर ऑफ का। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स फॉर ऑफ लूप। अब इसमें भी क्या है, सिंटेक्स देखने में वैसी है, वेरिएबल आ रहा है, एरे आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, और हमारे पास चीज़ें चल रही है। अच्छा, सबसे पहले तो भाई वही जो शॉपिंग लिस्ट थी मैं वो बना सकता हूँ, या कुछ भी बना सकता हूँ, सही है। इस बार मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट, एक एरे चाहिए ना भाई हमें लोड करना है। इसमें बनाता हूँ भाई माय क्लॉथ, सही है। सब पहना दिया इसने भाई, टी शर्ट हो गई, स्वेटर हो गया, शूज हो गया, पैंट भी दे दो भाई। अब ये हमारे पास पैंट इसकी आ गई। या जीन्स भी हो सकती है वैसे, हमारे पास बेल्ट भी आ गई, चले पैंट हमारी दे ली थी तो उसने बेल्ट दे दी। भाई हमारे पास कुछ एक एरे आ गया जिसमें मैंने माई क्लॉज के नाम से एक एरे बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ऊपर लूप करूँ, सही है। तो भाई सेम वही सिंटेक्स है हमारा जैसे हमने वहाँ यूज़ किया था। बस फर्क क्या आ गया भाई, वहाँ पे हमने इन यूज़ किया था, यहाँ पे हम और यूज़ करेंगे। तो हमने बोला भाई माई क्लॉथ में से एक एक आइटम निकालो, और उसको भाई पहले आप क्या करो, यहाँ पे लॉक कर दो। और अगर खाली आप आइटम को लॉक कराएंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई पहले फॉरेन ने हमें इंडेक्स रिटर्न किया था, ये डायरेक्टली हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा, सही है। अच्छा, मैंने गलत फाइल चलाई है, तो मैं फाइल को सही चला लेता हूँ भाई। फॉर ऑफ लूप डॉट जे एस, सही है। तो अब मैंने फाइल का नेम सही कर दिया है, तो अब देखें क्या होता है। तो अगर आप देखें टी शर्ट, स्वेटर, शूज, सनग्लास, कोट, बेल्ट, तो ये है इसका सही तरीका अगर आप वैल्यूज को ऊपर आइटरेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो भी है ना, हमारा एरे हो गया, मैप हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो वो सारा हमारा आइटरेटेबल है, सही। मिसाल के तौर पे मैं आपको फॉर का लूप चला के दिखाता हूँ स्ट्रिंग के ऊपर। फॉर, और यहाँ पे जो ऑफ लिखा है ना मैंने, इसकी जगह मैं कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये जो चलेगा, या मैं चाहूँ तो कुछ और वेरिएबल का नाम दे सकता हूँ। पहले मैंने आइटम यूज़ किया था, मैं यहाँ यूज़ करता हूँ चार, सही है। चार मतलब एक कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर आएगा ना भाई, या अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हैं। सही है, मैंने इसको बोला भाई एक एक अल्फ़ाबेट मुझे आप यहाँ पे लॉक करा दो। स्ट्रिंग के ऊपर लूप चल रहा है, देख रहे हैं। ये भाई हमारा हो गया। सही है, लूप ऑन एन एरे, और यहाँ पे मैंने बोला लॉग, जब मैंने एक डैश डैश डालते हैं हम वो डाल देते हैं, सही है। और ताकि हमारा एक डिवाइडर बन जाए, और यहाँ मैं बोलता हूँ लूप ऑन स्ट्रिंग, सही है। तो ये हमारा स्ट्रिंग के ऊपर भी लूप चल सकता है, चाहे तो आप स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में भी रख सकते हैं। तो भाई अब मैंने यहाँ पे आ गया और मैंने इसको चला दिया, सेव कर दिया, और पहले स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करा मैंने, और मैंने यहाँ पे आके इसको चला दिया। तो भाई जैसे ही मैंने करा तो आप देखें भाई एक एक करके आ रहा है, सही है। HELLO, तो इस तरीके से ये आ सकता है। सेम मैंने अच्छा यहाँ पे अगर आप आए लूप ऑन एन एरे के ऊपर, यहाँ पे इसको सेम कॉन्कैटिनेशन करके जो भी करके आप इसका मैसेज डाल सकते हैं। तो भाई ये है हमारा फॉर ऑफ का लूप, जो कि हम IT टेबल के ऊपर से लगा सकते हैं। मैप भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो है ना JS मैप्स, तो अगर आप ये डाटा टाइप पढ़ेंगे तो आपको मैप समझ में आ जाएगा। मैप होल्ड की वैल्यू पेयर वेयर द की कैन बी एनी डाटा टाइप, सही है। तो अगर आप मैप को जैसे न्यू मैप करके ये बनता है, तो ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, तो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लेगा, लेकिन फिलहाल अभी हम अपने उसमें लूप्स कवर कर रहे हैं। तो जब इंशाल्लाह फ्यूचर में हम और एडवांस चीज़ें पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ क्लासेस तो इंशाल्लाह चलती रहेंगी ना, मेरा मकसद तो एडवांस लेवल भी सिखाना है आपको, तो हम वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे। भाई ये क्या बताया, फॉर एवरी आइटरेशन द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज असाइन टू द वेरिएबल। और वेरिएबल जो भी आप
चाहे तो कौन से बनाए, लेस से बनाए, बार से बनाए। सही है। और बस आपके पास एक आइटरेटेबल होना चाहिए। आइटरेटेबल एन ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है, जिसको ऊपर आप लूप चला सकें। सही है। एक आइट्रेशन वाला प्रोसेस होता है ना भाई। आइट्रेशन का वर्ड समझ लिए, इंक्रीमेंट टाइप का ये एक वर्ड है। अच्छा भाई, अब ये थोड़ा सा ब्राउजर सपोर्ट के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये 2015 में ES6 में आया था। और फिर ये क्रोम का वर्जन था जो कि 2014 में आया था। ये माइक्रोसॉफ्ट एज का वर्जन था जो 2015 में आया था। और फायरफॉक्स और बहुत सारे जो भी ब्राउजर हैं मेजरली आप लोग यूज़ करते हैं, उनके ईयर्स बताए हुए भाई इसका सपोर्ट कब आया था। अब ये बता रहे हैं कि भाई लूपिंग ओवर एन एरे, कि अगर आपको एरे के ऊपर लूप करना हो तो किस तरीके से कर सकते हो। आपका एरे आ गया और इसके ऊपर आप लूप कर लो, हम देख चुके हैं। अब ये बता रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग के ऊपर करना है तो स्ट्रिंग के ऊपर कर लो। तो भाई हमारा जो फॉर ऑफ का लूप था खत्म हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई वाइल और डू वाइल अगर पढ़ना है तो आप नेक्स्ट चैप्टर में चले जाओ। तो भाई हम यहाँ नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं और एक नई फाइल बना लेते हैं। सही है। तो ये हमारा फॉर ऑफ का लूप हो गया। अब हम न्यू बना लेते हैं फाइल, वाइल डैश लूप डॉट ts के नाम से। सही है। तो हमने एक वाइल लूप के नाम से फाइल बना ली और हमने लिख दिया भाई बेसिक सिंटैक्स फॉर नहीं हुए। अच्छा भाई, अब वाइल लूप का जो है ना कंडीशन, वाइल लूप की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वाइल लूप में क्या होता है कि भाई इसका सिंटैक्स जो है ना बेसिक, जैसे अभी हमने फॉर ऑफ का देखा, फॉर इन का देखा था भाई। फॉर इन में क्या था भाई, फॉर लिखते थे, दो राउंड ब्रैकेट लगाते थे, इन लिख देते थे बीच में, एक वेरिएबल इधर होता था, एक्चुअल एरे वगैरह हमारा दूसरी तरफ होता था। मतलब राइट हैंड साइड के ऊपर हम एक्चुअल एरे देते थे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम वैल्यू देते थे। वाइल का लूप पता है क्या है? वाइल का लूप डायरेक्ट कंडीशन लेता है, हम इसे अनएक्सपेक्टेड लूप भी कहते हैं। और जो हमारे दो नॉर्मल लूप्स हैं वो एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं। वो आपके अपने ऊपर है कि आप लूप को किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हो। अगर आप चाहो तो लूप को अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मुराद ये आपको नहीं पता कहाँ तक चलेगा। जैसे अभी बीच में जब मैं कर रहा था, मेरे से कंडीशन गलत हो गई थी तो वो चले जा रहा था। सही है। अनएक्सपेक्टेड हो गया ना, कहाँ रुकेगा कुछ नहीं पता, कितनी नेगेटिव गिनती वो जनरेट करेगा मुझे कुछ नहीं पता। तो उसको मैंने कंट्रोल C दबा के कीबोर्ड में मैंने बंद कर दिया था। तो ये एक चीज़ है इसकी। अच्छा भाई, वाइल लूप को थोड़ा पढ़ लेते हैं हम वहाँ से कि भाई किस तरीके से क्या है। अच्छा भाई, ये क्या है, लूप कैन बी एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। मिसाल के तौर पे भाई आपने देखा होगा कि भाई जब तक रमज़ान होते हैं तो पकोड़े समोसे हर जगह अवेलेबल होता है। सही है। अभी पहले रमज़ान थे तो सब अवेलेबल थे। तो भाई ये लूप क्या आता है भाई, रेगुलर पकोड़े बना रहे हैं लोग, रेगुलर समोसे बना रहे हैं, घर में हमें खाने को मिल रहा है, रेगुलर रूह अफ़ज़ा पी रहा है। या फिर जब तक रमज़ान है हम रोज़े रखेंगे, या जब तक चांद नहीं निकलता इतना, तो क्या कहते हैं, हम लोग रोज़े रखेंगे। तो वो एक कंडीशन है। सही है। तो ये लूप भी हमारा एक कंडीशन की बेस के ऊपर चलता है। तो कंडीशन जैसी फॉल्स होती है, जैसी ईद का चांद रमज़ान का चांद ख़त्म हो गया, सही है, तो या ईद का चांद निकल गया, ट्रू। सही है। तो जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, सही है, ट्रू फॉल्स पे नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे ईद का चांद निकल गया, नहीं फॉल्स है, तो ये लूप चलता रहेगा। नहीं बल्कि सॉरी, एक सेकेंड में खुद कंफ्यूज हो गया। कंडीशन ट्रू से मुराद ये है, अगर मुझे एग्जाम्पल को बनाना है, इसका स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। भाई रमज़ान का चांद है निकला हुआ, हाँ चलेगा। फिर रमज़ान का चांद है निकला हुआ, हाँ चलेगा। रमज़ान का चांद है निकला हुआ, चलेगा। रमज़ान का चांद है। अब जैसे ही चांद आता है, रमज़ान का चांद है निकला हुआ, नहीं अब तो ईद का निकल गया। तो जब चांद ईद का निकल गया तो ये फॉल्स हो जाएगा और वाइल का लूप रुक जाएगा। सही है। अब एक डू वाइल का लूप है इसी का अपोजिट, तो डू वाइल को भी हम देखते हैं, पहले वाइल का हम देखते हैं। वाइल का बेसिक सिंटेक्स तो ये था। अब भाई ये किस तरीके से हो सकता है कि भाई मैं आया, लिखता हूँ वाइल। अच्छा भाई, वाइल के अंदर हम अगर ट्रू दे दें, इस तरीके से हमें यहाँ पे कोई कंडीशन देनी है जिसकी बेसिस पे चले। सही है। तो मैं बोलता हूँ आई लेस देन, लाइक ग्रेटर देन है 10 के,
पहले तो हम इससे ना क्या करते हैं भाई, एक वेरिएबल बनाता हूँ आई इक्वल टू 0। आई अगर बड़ा है 10 से, मतलब 0 से लेके ये 10 तक गिनती करने का, सही है। आई को मैं करता हूँ भाई 1। हम क्या करा रहे हैं भाई, एक हमने लूप बनाया जो कि चले, जिसको मैं चाह रहा हूँ कि भाई 1 से लेके 10 तक गिनती कर दे। ये क्या है हमारी भाई कंडीशन है कि भाई आई स्टार्ट हुआ 1 से, 1 हमारा बड़ा है 10 से, नहीं, है ना। एक एक चला के देखते हैं फिर हम बताते हैं, सही है। तो भाई क्या कंडीशन बनी है। चल लेस देन ग्रेटर देन में ना मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ। तो वैसे अगर ये ग्रेटर देन है मेरे हिसाब से, तो आई बड़ा है 10 से, और यहाँ पे हम बोलते हैं इसको आई प्लस प्लस। तो भाई जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक चलेगा ना भाई। अगर हम बोले आई छोटा है 10 से या बराबर है 10 के, तो चले, सही है। अब फिर भी समझ में आ रहा है कि भाई ये है हमारा लेस देन। अब 1 छोटा है 10 से, हाँ ट्रू हो गई। बराबर है फॉल्स है, तो भाई एक कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, क्योंकि हमने क्या लगाया है भाई, लेस देन इक्वल लगाया है। तो भाई अब ये चलेगा, फिर प्लस प्लस कर देगा। ऐसे करते करते जैसे ही 10 पे आएगा तो 10 बराबर होगा 10 के, फिर 11 होगा जैसे ही ये हमारा चलेगा। तो 11 होगा तो फिर 11 ना बराबर है 10 के, ना 11 छोटा है 10 से, तो फिर ये नहीं चलेगा। तो भाई इससे हम गिनती जनरेट करा सकते हैं। फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ, WHILE डैश लूप डॉट ts। ओ सॉरी, JS आएगा ना। जावास्क्रिप्ट लिखना क्योंकि डिस्क के फोल्डर में तो वही जाता है। आप देखें 1 से लेके हमने 10 तक गिनती कर दी। आप इस पे कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं भाई, सही है। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये कर दिया, और मैं चाहता हूँ भाई कि चांद निकला है, मिसाल के तौर पे 30 रोजे रखते हैं, सही है, या रमज़ान है या नहीं। तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक वेरिएबल लेट के भाई इस रमदान, सही है, इक्वल टू। इसको मैं थोड़ी सी स्पेलिंग सेट कर दूँ भाई, रमादान कर देता हूँ, सही है। अगर भाई रमज़ान है तो ये लूप चलेगा, सही है। और यहाँ पे हम कर देते हैं कि भाई यस वी आर सेलिंग समो, क्या बोलते हैं भाई, पकोड़ा बोलते हैं, सही है। पकोड़ाज, एक से ज़्यादा होते हैं ना तो पकोड़ाज। और आई को प्लस प्लस कर दो, सही है। अब इस कंडीशन को हमें ट्रू कराना है। अच्छा जैसे ही मैं चलाऊंगा ना चलता रहेगा, क्योंकि भाई ये ट्रू है, भाई कभी भी फॉल्स नहीं होगा, हर वक्त रमजान रहेगा तो भाई ये वो लिखता रहेगा यस वी आर सेलिंग पकौड़ा, यस वी आर सेलिंग पकौड़ा। तो हमें इस चीज़ को रोकना है, सही है। तो भाई उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और वो जो गिनती वाला था ना वो तो ले आऊँ, ऐसा ना वो कोड गायब हो जाए यहाँ से। सही है भाई, ये था एक सिंपल। मैं यहाँ पे आ गया और आई की जगह इस बार मैं जे कर देता हूँ, और यहाँ पे जे को बोलता हूँ जे प्लस प्लस। सही है, सेम वही था, यहाँ पे मैं एक डिवाइडर बना देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सेपरेशन मिले ना कोड के अंदर। और ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगेंगे या उससे कम ही हमारी वीडियो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर भी ये चलेगा ना तो भाई हमेशा हमारा ट्रू रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करने का हमने सीखा था भाई, ब्रेक की कंडीशन लगती है। तो भाई हमने बोला इफ, सही है भाई, कितने रोजे होते हैं भाई रमजान में, 30 होते हैं भाई, सही है। इफ जे इक्वल इक्वल है हमारा, चाहे तो 3 यूज करें या 2 यूज करें, कितने भाई 30 रोजे होते हैं, समझ लो इस बार चांद वाली कहानी जो है हमारी 30 रोजों पे है। तो आप बोलो इसको कि भाई यस वी आर सेलिंग समोसा। और अगर मैं इसको बोलूं एल्स, अच्छा अगर 30 हो जाए तो भाई ये बोले 30 ना हो, सही है। अगर 30 है इसका मतलब क्या है भाई, रमजान खत्म हो गए। और ये मैसेज कर दे लॉग
रमजान इज ओवर और यहाँ से ब्रेक कर दे। सही है। तो भाई ये प्रोग्राम क्या कह रहा है भाई, आपका जे था 1, ये था ट्रू, तो ये तो चलते रहेगा। और हमें इसे फॉल्स भी करना है। सही है, तो रमजान इज ओवर करो। सही है, और इसको क्या कर दो भाई, इज रमजान इक्वल फॉल्स करो। अगर रोजे, अगर हमारा जो डेट है, ये जो नंबर है, सही है, रमजान डे, इस जे को मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ। सही है, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन हो भाई। अ, रम सही है, तो अब रमजान में हमारा भाई पहला रोजा है। सही है, और ये हमारा आ गया, कॉपी कर दिया, और रोजा के अंदर ही हमने कहा भाई रोजा रमजान दे प्लस प्लस कर दो। तो थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे भाई। यहाँ पे भी हमने बोल दिया भाई, अगर रमजान डे हमारा इक्वल इक्वल है 30 के, दैट्स मीन कि भाई रमजान अब खत्म हो चुका है, रमजान ओवर का मैसेज करेगा और ब्रेक कर देगा, लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा, इससे आगे नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं भाई कि होता क्या है एक्चुअल में जब ये सच में चलेगा। मैंने वाइल लूप वाली को कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। सही है भाई। तो इसने क्या किया भाई, 30 दफा हमें बोला यस वी आर सेलिंग पकौड़ा, यस वी आर सेलिंग पकौड़ा। जैसे ही रमजान हमारे खत्म हुए, उन्होंने बोला रमजान इज ओवर, अपना बोलिया बिस्तर बांध दो, अब हमारे समोसे या पकोड़े नहीं बिकेंगे। तो भाई इस तरीके से हमने क्या किया भाई, वाइल का लूप भी यूज किया कंडीशन के साथ, और यहाँ पे हमने नंबर वाली कंडीशन बनाई थी। तो ये तो सिंपल एक लूप जो है हमारा 1 2 3 4 कर देता है, यहाँ पे हमने कंडीशन दी। मैं दोबारा कोड को छोटे से तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ भाई। जैसे ही हमारा कोड चलेगा, इंटरप्रीटर है, लाइन नंबर 16 पे आया फॉर एग्जाम्पल, ये वाली को इग्नोर कर दें। उसने एक वेरिएबल बनाया भाई, रमजान डे के नाम से वेरिएबल बना दो, उसमें 1 डाल दो भाई, आज पहला रोजा है। उसने बोला भाई क्या रमजान चल रहा है, उसने बोला ट्रू। लूप चलाया भाई, जब तक रमजान ट्रू है तो ये तो चलता रहेगा। सही है, तो ये मतलब इतना हिस्सा जो है हमारा, ये रिपीट होता रहेगा। अब उसने चेक किया भाई, क्या रमजान डे आज हमारा जो है 30 के बराबर है, नहीं भाई 30 के बराबर नहीं है। तो उसने बोला भाई सही है, हम समोसे बेचे पकोड़े बेचेंगे। फिर वापसी आया, और फिर क्या करा भाई, इसने रमजान डे को प्लस प्लस भी कर दिया। प्लस प्लस जैसे ही किया, तो अब हमारा जो 1 था ये बन जाएगा 2। सही है, ये वाला क्या बन जाएगा, 2। भाई 2 बराबर है 30 के, नहीं। वापसी ये आया लाइन, इस तरह चलता रहेगा चलता रहेगा, और एक वक्त आएगा भाई ये प्लस प्लस करने के बाद रमजान डे इक्वल हो जाएगा 30 के। तो जैसे ही रमजान डे इक्वल है 30 के, यस, तो भाई सबसे पहले तो इस रमजान को फॉल्स कर दो, मतलब ये वाली वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ये करो कंसोल डॉट लॉग रमजान इज ओवर, और यहाँ पे लगा दो ब्रेक। सही है, तो जैसे ही ये ब्रेक होगा, सही है, तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्रेक ना भी लगाए ना, क्योंकि हमने इस रमजान फॉल्स कर दिया ना, क्योंकि मैं कोड पढ़ता हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है ना। सही है, अगर आप ब्रेक ना भी लगाएं तब भी ये बाहर आएगा। सही है, इसको प्लस प्लस करेगा और चेक करेगा भाई ये तो फॉल्स हो गया, तो भी रुक जाएगा। नहीं यकीन आता तो आए चेक करते हैं भाई। वैसे चाहे तो ब्रेक से भी हम इसको कर सकते थे, लेकिन अब हम दोबारा चलाते हैं। सही है, तो आप देखें मैंने ब्रेक हटा दिया तब भी ये वो हो गया, क्यों, क्योंकि भाई वो जैसे ही आया, ये वाली कंडीशन इसको फॉल्स मिल गई, मतलब ये सॉरी इस रमजान हमने फॉल्स कर दी थी, तो ये यहीं पर रुक गया। तो भाई इस तरीके से हम वाइल का लूप यूज कर सकते हैं। सही है, तो अब मैं एक और लास्ट लूप पढ़ रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह इसको हम कर देंगे खत्म। डू वाइल में क्या है भाई, सेम है, पर इसमें क्या होता है भाई, पहले काम करता है उसके बाद कंडीशन चेक करता है। सही है, आप देखें भाई, डू, डू के बाद इसका जो सिंटेक्स है, 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं, उसमें आप अपना कोड लिखोगे, फिर वाइल लिख के कंडीशन डाल दोगे। ये कुछ ऐसा है, मिसाल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे, उसने ला के आपको खाना दिया, आपने खाना खाया, और खाना खाने के बाद आपको पता चला कि यार इसमें मिर्चें ज़्यादा है, या फिर नमक बहुत ज़्यादा है। सही है, तो इसके लिए आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पहले आपको आ, टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंडीशन का अंदाज चेक करोगे ना कि भाई सही बना या नहीं बना। अगर हम इसी चीज़ को वाइल से करें, तो वाइल को इस तरीके से ले सोच लें भाई, आपको किसी ने आप बर्गर की दुकान पे गए, उसने बर्गर ला के रखा और बर्गर ख़राब था।
तो आप पहले चेक करोगे उसकी कंडीशन। आपने देखा भाई देखने में खराब तो नहीं लग रहा, आपने सूंघ के देखा बर्गर को, भाई खराब नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, फिर आप खा लोगे। इसमें क्या भाई, आप पहले खाओगे और खाने के बाद आप कंडीशन चेक करोगे कि भाई ये सही है या नहीं। बात ऐसा होता है ना कि हम लोग कभी कभार जल्दी में कुछ खाना वाना रखा हुआ होता है, हमने निकाला खाया, जैसे ही खाया अबे यार ये तो खराब हो गया, तो हम जल्दी जल्दी में भूख में हम चेक नहीं कर पाते। तो डू वाइल भी कुछ इस तरीके से है, पहले एक बार कोड जरूर चलाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो भाई किस तरीके से होता है भाई, डू लिखो, दो कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, सही है, और यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे एक कंडीशन लिख दी जो कि फॉल्स होगी, सही है। फिर अगर मैं यहाँ पे आऊँ, देखते हैं भाई इन्होंने डू वाइल का क्या लूप बताया है। भाई वाइल का लूप हमने पढ़ लिया, भाई डू वाइल का लूप को ये पहले डेफिनेशन क्या बता रहे हैं वो देखते हैं, क्योंकि डू वाइल का लूप जो है बहुत कम यूज होता है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इसको लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, लेकिन हो जाता है। भाई क्या है बता, द डू वाइल लूप इज वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप, मतलब वाइल लूप का ही एक दूसरी किस्म है। द लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस, मतलब एक बार तो कोड ब्लॉक आपका चलेगा, बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये नॉर्मली हमने देखा था ना, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चलेगा, ये वो चेक करने से पहले ही एक बार चला देता है। देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग इज द कंडीशन इज ट्रू। ये इसका तरीका था भाई। अब इन्होंने क्या किया भाई, एक लूप बनाया जो कि नंबर जनरेट करता है वाइल का, और कहाँ तक करेगा वो देखते हैं, सही है। तो ये नॉर्मली 10 तक लिखा हुआ है, तो इफ लेस देन का निशान है, सही है, तो लेस देन जब तक 10 तक होगा तब तक चलेगा। मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सही है। कॉपी क्यों कर रहा हूँ यार, वहीं जाके हम लिखेंगे यार, छोड़ो। अच्छा यहाँ क्या कह रहा है भाई, डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल वैल्यू इन कंडीशन अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड। और फिर ये आपका जो कहते हैं लूप जो होगा बड़ा खतरनाक किस्म का हो जाएगा। हम इधर आ गए वापसी, सही है। हमने बोला भाई लॉग कर दो, अगर हम बर्गर वाली एग्जांपल लें, सही है, कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट के बनाया था क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, कॉन्स्ट इज फूड, और आपको हम क्या बोलेंगे भाई इंग्लिश में, ये भी एक बड़ी खतरनाक है, बासी बोल देते हैं भाई, सही है। स्टेल हम बोलते हैं बासी खाने को, सही है, STA इस फूड स्टेल, सही है, हमने बोल दिया ट्रू। और हमने यहाँ पे आए, हमने बोला भाई क्या करो, कीप ईटिंग, सही है, मतलब खाओ, या फिर हाँ कीप ईटिंग है, या फिर खाली ईटिंग लिखो, ईटिंग। और फिर हम यहाँ पे डू लिख दिया। अब देखें अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा हमें वाइल, और इस फूड स्टिल। अब देखें भाई फूड हमारा खराब है, और देखते हैं क्या होता है भाई, जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इस फूड फ्रेश, सही है, उल्टा कर दिया मैंने, FRESH, सही है, फ्रेश। अब आपको किसी ने खाना लाके दिया बासी, मैंने इसको बोला फॉल्स, सही है। अब कंडीशन फॉल्स दे रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी वो खाना खाएगा। आपने मुझसे कुछ मंगवाया, वो खाना क्या था, बासी था, फ्रेश नहीं था, और आपको जैसे ही वो खाना मिलेगा, फ्रेश है नहीं है आपको नहीं पता, आपने एक बार उसको ईट करा, जैसे ही ईट करा आपको पता चला भाई ये तो फ्रेश नहीं है, फॉल्स है कंडीशन, तो फिर ये रुक जाएगा, एक ही बार चलेगा मतलब। सही है, तो आप देखें ये कितनी बार चला, एक बार चला। और अगर इसको ट्रू को करवाना है, सही है, तो ये कुछ इस तरीके से भाई, दसने वाले में आपको खाना है, कुछ भी करना है आप कुछ भी बना सकते हैं इसको। तो भाई ये मैं एक बेसिकली छोटी सी एग्जांपल दिखाना चाहता ना डू वाइल की। डू वाइल की एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं भाई, जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी भाई वाइल लूप के अंदर। हमने भाई क्या करा था भाई, डू वाइल किस तरीके से चलता है, एक डू वाइल हम यहाँ से ले लेते हैं भाई। एक हम लेते हैं भाई डू वाइल का लूप, सही है। भाई डू वाइल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट फर्स्ट देन चेक द कंडीशन, सही है। तो हमने टेबल जनरेट कराने की कोशिश करी है यहाँ पे, और
यहाँ मैं लाइन 9 जो है 54 लिख देता हूँ, क्योंकि हम 54 पे हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई एक बार एग्जीक्यूट हुआ है। हमने यहाँ 7 का टेबल जनरेट कराने की कोशिश करी है। ये वाला सिंटेक्स अगर आपको समझ में ना आए तो आप समझ लेगा ऊपर से। और इसको मैं चलाता हूँ तो होगा क्या, क्योंकि भाई कंडीशन अगर हमारी सही नहीं चलेगी तो फिर ये एक बार सिर्फ चलेगा हमारे पास। तो फिर देखें भाई 7 11 77 चला और ये रुक गया, क्यों भाई? अगर आप देखें भाई, जे जो है 11 है, सही है, तो हमने बोला अगर जे की वैल्यू, सही है, छोटी हो या बराबर हो 10 से, तो 11 ना छोटा है 10 से ना बड़ा है 10 से, सही है, तो ये क्या करेगा भाई, कंडीशन इज फॉल्स। तो सो डू वाइल विल स्टॉप, सही है, तो अभी ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो भाई क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब जैसी कोड एग्जीक्यूट होता है ना, इसका इंटरप्रेटर जो चलेगा, इस पे आएगा लाइन नंबर 50 पे, भाई एक जे का वेरिएबल बना दो, उसमें 11 रख दो, सही है। फिर वो यहाँ आया, उसने देखा कि भाई 7 लिखना है, उसने 7 लिखवा दिया। उसने बोला एक्स लिखना है, उसने एक्स लिखवा दिया। उसने बोला भाई जे लिख दो, जे क्या था भाई 11 लिखता, तो उसकी 11 की जो वैल्यू थी वो आ गई हमारे पास 11, सही है। फिर उसने बोला भाई इक्वल का साइन लिख दो, उसने इक्वल का साइन लिख दिया। फिर हमने बोला 7 लिख दो, 7 मल्टीप्लाई बाय जे, तो भाई 11 और मल्टीप्लाई बाय 7 हुआ तो 77 आ गया। फिर उसने बोला भाई लाइन 54 लिख दो, लाइन 54 लिख दो। उसने अब बोला भाई जे को प्लस प्लस कर दो, अब जैसे ही जे प्लस प्लस हुआ तो अब जे बन गया 12। अब वो यहाँ पे आया, सही है, भाई उसने देखा 12 छोटा, मतलब 12 हमारा छोटा है 10 से, नहीं 12 हमारा बड़ा है 10 से, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई और ये इससे आगे नहीं चला। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो कोड हमारा जो क्लास वाला है वो वेनेसडे वाली रेपो के ऊपर पड़ा हुआ है, क्लास 8 है, आप वहाँ से देख लेगा। बाकी मंडे वाली क्लास को तो हम वापसी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। क्लास में तो आपको पता है हमने डिफरेंट पढ़ा है, और यहाँ पे हमने डिफरेंट पढ़ा है। क्लास में हमने ये वेरिएबल वाली चीज़ें भी कवर करी थी, तो मतलब एरे के ऊपर आप किस तरीके से इंडेक्स पास कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी हम इसको देख सकते हैं। तो बहरहाल ये चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। वाइल के लूप के अंदर कुछ भी नहीं है भाई, एक एरे बना हुआ है, यहाँ पे इंडेक्स आ गया, उस इंडेक्स की पोजीशन के ऊपर जब चेक किया कि भाई जो आई है हमारा 0 है, तो भाई इसके ऊपर आप प्लस प्लस कराते जाओ, वैल्यू को लॉक कराते जाओ। तो भाई यहाँ तक आज हमने पढ़ लिए एरे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन मुझे जो लगा है ना पर्सनली, मुझे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि असल में एग्जाम्पल्स जो है ना लूप्स की, और एक ही साथ हमने सारे लूप्स पढ़े हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए हार्ड हो जाए। तो आप क्या करेगा भाई, एक लूप देखेगा, मिसाल अगर फॉर से स्टार्ट होता है, उसकी प्रैक्टिस कर लेगा, फिर अगले दिन सो के उठ जाएगा, फिर उसी जितना आप टाइम नोट कर लेगा भाई कितने वीडियो हो गई है, फिर उससे आगे की वीडियो देखेगा, इस तरीके से आप इस वीडियो को फॉलो कर लेगा, तो इंशाल्लाह हो जाएगा कवर ना। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सही है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगा, डेट्स इट, अल्लाह हाफिज़।